Welcome to Physics with Vinay Uppal. I am Vinay Uppal and I'm back. इस वीडियो में I'm going to be solving modern physics के previous year questions from the last 5 years. Modern physics is one of the high weightage chapters, high weightage topics जो last few years में आ रहा है, ऐसा trend है. And most importantly वो actually काफ़ी scoring है. ठीक है, so it's a good thing that it is high weightage, it's very scoring. So let's just quickly go over the last 5 years के PYQs. उसमें around 15-16 problems on an average 3-4 problems तो आते ही हैं every year and almost all of them are very scoring. So let's take a look. So ये 2018 का question है. In a radioactive decay chain, 232 thorium decays to 212 lead nucleus. N alpha and N beta are the number of alpha and beta particles emitted in this decay process. तो पूछा है, वैल्यू पूछा है अल्फा और बीटा का डीके पार्टिकल्स का. ठीक है ना, मुझे पता है कि अल्फा डीके में द मास नंबर 232 जो है वो 212 पे जा रहा है. तो अल्फा डीके में आई नो कि मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4. बीटा डीके में तो कुछ होता है नहीं, तो यहाँ पे कितना डिक्रीज हो रहा है 20 डिवाइड बाय 4 करूँगा तो इसका मतलब 5 अल्फा डीके होना चाहिए. सो 5 एन अल्फा का वैल्यू हो जाएगा. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. एन बीटा के लिए तो अल्फा पार्टिकल में 2 से डिक्रीज होता है एटॉमिक नंबर. 90 से हो जाएगा 80 अगर सिर्फ अल्फा डीके होता. बट वी नो कि वी हैव टू गो टू 82 एंड वी नो बीटा डीके में 1 से इंक्रीज होता है. सो देयरफॉर यहाँ पे 2 बीटा डीके होगा टू गो टू 82. ऑलराइट, सो आंसर वुड बी ए एंड सी. आगे बढ़ते हैं. Another question from 2018. In a photoelectric experiment, a parallel beam of monochromatic light is with power 200 watts is incident on a perfectly absorbing cathode of work function 6.25 electron volts. Okay, so let me just draw the diagram. मेरे पास एक कैथोड है, उस पर 200 watts of light is incident. ठीक है. The frequency of the light is just above the threshold frequency, so that the photoelectrons are emitted with negligible kinetic energy. इसका मतलब the photons का जो energy है is just able to overcome work function, मतलब उसका भी energy 6.25 electron volt ही मानेंगे अपन. Photoelectron efficiency is 100%. A potential difference of 500 volts is applied between the cathode and the anode. So इसके इन दोनों के बीच में 500 volts है. All the emitted electrons are incident normally. Okay, so सारे normal incident है. The anode experiences a force. Okay, सारे absorb भी हो गए तो force पूछा गया. So can I write my force as rate of change of momentum? I can write it as, see, suppose I have n electrons per second incident on this anode. I can write it as n is the number of electrons per second into the momentum of each electron. इतना momentum per second है और सारा absorb हो गया. ठीक है. So पहले तो n निकालते हैं, दो चीज़ करना है, n निकालना है, p निकालना है. तो n कैसे निकालेंगे अपन? We've been given that the efficiency is 100%. इसका मतलब कितने जितने number of electrons are incident per second उतने photons भी होंगे per second incident because 100% efficiency. So photons कैसे निकालूँ? I know 200 watts is the total power and I write it as number of photons per second into the energy of one photon which is 6.25 electron volt. उसको convert करना पड़ेगा joules में. ठीक है. वन फोटोन का एनर्जी 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n फोटॉन्स पर सेकंड आ रहा है तो टोटल अपने को एनर्जी आ गया राइट हैंड साइड पे पर सेकंड विच इज इक्वल टू 200 वॉट्स. ओके, सो n का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. 200 डिवाइड बाय 6.25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19. ओके, सो थोड़ा सा फटाफट कैलकुलेट करते हैं. 2.5 से डिवाइड करूँ तो ये बन जाएगा 80. 180 बाय 1.6 वुड बी 50. So 50 by 2.5 would be 20. So 20 into 10 power 19. मतलब 2 into 10 power 20. These are the number of electrons per second. ठीक है. And force momentum चाहिए. हाँ, तो momentum कैसे लिखूँ मैं? Can I write it as twice root of 2mk? K is the kinetic energy. Because kinetic energy को मैं p square by 2m लिख सकता हूँ. और kinetic energy को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 500 volts में accelerate किया है इलेक्ट्रॉन ने, तो charge into 500 volt will be the kinetic energy gained. So 2 into mass कितना है? mass is 9 into 10 power minus 31 दिया हुआ है. Kinetic energy is charge into the potential difference 500 volts. Okay, थोड़ा कैलकुलेशन करना है फिर से. तो 2 into 500 1000 हो गया. ठीक है. फिर 1000 into 1.6 1600 हो गया. स्क्वायर रूट लेना ना. So I'll have 9 का स्क्वायर रूट इज 3 और 1600 का स्क्वायर रूट 40 और बचा 10⁻31 10⁻19 तो 10⁻50 तो स्क्वायर रूट लेके 10⁻25 तो ये बन जाएगा 120 इंटू 10⁻25. ठीक है. क्या पूछा क्या?
फोर्स पूछा गया इन टर्म्स ऑफ 10⁻⁻⁴ न्यूटन्स. ऑलराइट, सो I already have n is 2 into 10 power 20 and momentum is 120 into 10 power minus 25. So my force would be 240 into 10 power minus 5, मतलब 24 into 10 power minus 4. So my answer would be 24 यहाँ पर. ठीक है, देख लो. Let's look at another question from 2018. Consider hydrogen-like ionized atom with atomic number Z, single electron है. Emission spectrum में the photon emitted in 2 to 1 transition has 74.8 electron volts higher than the photon emitted in the 3 to 2 transition. तो ionization 13.6 दिया हो तो पता ही है. Value of Z पूछा गया. So let me just calculate the difference in the energy for hydrogen atom. बाद में Z square से multiply कर दूंगा तो ये वाले atom के लिए निकल जाएगा. So कितना हो जाएगा? 13.6 2 से 1 जो transition है, ठीक है, माइनस 13.6 इंटू 2 से 3 से 2, सो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर. ये मेरा हाइड्रोजन आइटम के लिए इनका डिफरेंस तो कितना हो जाएगा? दिस विल बी 3/4 माइनस 1/4 माइनस 1/9, दैट विल बी 5/36. ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 डिवाइड बाय 36. ठीक है, कितना हो जाएगा ये? इफ आई जस्ट डिवाइड बाय 4, ये 9 और ये 3.4. 22 इंटू 3.4 88 3, तो 74.8 हो जाएगा ना ये, डिवाइड बाय 9. अब इसको z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 74.8 आना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर आइटम इन द क्वेश्चन. सो देयरफॉर z इज इक्वल टू 3. दैट्स योर आंसर. देख लो. अब 2019 पे आते हैं. इन अ रेडियोएक्टिव सैंपल 40 पोटेशियम न्यूक्लिया आइदर डीके इनटू स्टेबल कैल्शियम न्यूक्लिया विद डीके कांस्टेंट कुछ तो दिया हुआ है, or into stable argon nuclei with another decay constant कुछ और दिया हुआ. Given in this sample all the stable calcium and argon nuclei are produced by the potassium nuclei only. In so and so time the ratio of the sum of the calcium and argon nuclei to the radioactive potassium nuclei is 99. The value of T will be. Okay, so ये मेरा simultaneous decay वाला question है. So potassium is decaying into calcium and argon. Let's say ये lambda है decay constant, तो कितना 0.5 और इसका 4.5. So ये 9 lambda बोलता हूँ, माने lambda का value substitute कर देंगे if need be. So we know इस साइमल्टेनियस डीके में लैम्डा इक्विवेलेंट 10 लैम्डा हो जाएगा, करेक्ट. सो पोटेशियम का कितना बचेगा? एन नॉट इंटू ई रेस टू माइनस 10 लैम्डा टी. और कितना डीके होगा? 1 माइनस ई रेस टू माइनस 10 लैम्डा टी. इतना डीके होगा, करेक्ट. इन्हीं का रेशियो 99 बोला हुआ. जितना डीके होगा उतना ही कैल्शियम और आर्गन बनेगा ना. सो आई हैव 1 माइनस ई रेस टू माइनस 10 लैम्डा टी डिवाइड बाय ई रेस टू माइनस 10 लैम्डा टी इज इक्वल टू 99. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. तो इस चीज़ को यहाँ पर ले लेता हूँ. सो आई हैव 1 is equal to 100 into e raised to minus 10 lambda t. So 10 lambda t should be ln 100 मतलब 2 ln 10 और ln 10 का वैल्यू कितना दिया है? 2.3 दिया हुआ. ऑलराइट, सो मेरे पास आ जाएगा t is equal to 2 into 2.3 डिवाइड बाय 10 और लैम्डा का वैल्यू कितना दिया है? 0.5 into 10 raised to minus 10. So 0.5 into 10 raised to minus 10 मतलब ऊपर 10 raised to 10 कर लेता हूँ. तो नीचे 10 into 0.5 तो 5 हो जाएगा. ठीक है, और एक्चुअली ये कर लेता हूँ 2 ये 5 इंटू 0.5 2.5 हो जाएगा. 2.3 10 रेस टू 9 का टर्म्स में पूछा ना. सो 23 इंटू 10 रेस टू 9 डिवाइड बाय 2.5. तो ये तो 9 पॉइंट समथिंग हो गया ना. तो आंसर इज बी. ऐसे क्वेश्चन में पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है. ठीक है, ऑप्शन से समझ जाएगा. देख लो. Let's look at another question from 2019. A free hydrogen atom after absorbing a photon of wavelength lambda A gets excited from the n equal to 1 to n equal to 4 state. Okay, immediately after that electron jumps to n equal to m state by emitting a photon of wavelength lambda e. Let the change in momentum of the atom due to the absorption and emission be delta PA delta PE respectively. So due to the absorption and emission of the photon momentum change दिया हुआ है. तो इनका wavelength का रेशियो दिया हुआ है. which of the following is correct? क्या क्या पूछा? m का वैल्यू लैम्डा e रेशियो ऑफ मोमेंटम. ओके, सो सबसे पहले m equal to 2 निकालते हैं. तो m equal to 2 के लिए I know, see I can write Rydberg equation से 1 by lambda is r into 1 by 1 square minus 1 by 4 square. ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस इज 15 by 16, so 16 by 15 r. राइट, सो लैम्डा ई वुड बी 16 by 3 r बिकॉज रेशियो उन्होंने 1 by 5 दिया हुआ ना यहाँ पर. ओके, एंड आई कैन राइट 1 by lambda e Rydberg इक्वेशन से फिर से. सो 1 by lambda is 3r by 16 is equal to r into 1 by अब सम m square minus 1 by 4 square बिकॉज 4 से m जा रहा है वो ट्रांजिशन. ऑलराइट, तो देखो यार कितना हो जाएगा? 3 by 16 is 1 by m square minus 1 by 16. सो यहाँ से तो दिख रहा है 4 by 16 m equal to 2. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. फिर लैम्डा ई का वैल्यू पूछा गया. अब लैम्डा ई के वैल्यू के लिए आई कैन यूज द फैक्ट कि मेरे पास दे हैव गिवन एच सी का वैल्यू. सो
HC 12 यहाँ पे लिखता हूँ 1242 बाय लैम्डा E शुड बी इक्वल 13.6 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/4 माइनस 1/16, तो बन जाएगा 3/16. सो लेट मी राइट इट एज 3/16. ओके, तो अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ दिस विल बिकम 414. ठीक है, सो लैम्डा ई वुड बी 414 इंटू 16 बाई 13.6. अब ये 418 इज वेरी क्लोज टू 414, तो वी नो कि ये तो दिख रहा है कि 16 बाई 13.6 के कारण वो 414 से तो ज़्यादा ही होगा थोड़ा सिग्निफिकेंटली. ऑप्शन बी इनकरेक्ट. ठीक है, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है. फिर डेल्टा पी ए डिवाइड बाई डेल्टा पी ई इज इक्वल टू हाफ. ये तो ऑब्वियसली गलत है बिकॉज आई नो दैट द मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज एच बाय लैम्डा. तो कितना मोमेंटम एक्वायर होगा एच बाय लैम्डा ए, कितना मोमेंटम एमिशन के कारण एक्वायर होगा एच बाय लैम्डा ई. तो उनका रेशो ऑब्वियसली 1/5 के रेशो में होगा, तो दैट इज रॉन्ग. The ratio of kinetic energy of the electron in the n equal to m state to the state n equal to 1 is 1/4. Now kinetic energy of the electron I know is nothing but the equal to the negative of the total energy. ठीक है, both atomic models है, which is proportional to 1/n square. So n equal to m मतलब m का वैल्यू 2 है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, n equal to 2 स्टेट में ऑब्वियसली 1/4 हो जाएगा kinetic energy compared to ground state. देख लो. Another question from 2019. A perfectly reflecting mirror of mass m mounted on a spring constitutes a spring mass system of angular frequency omega such that कुछ तो वैल्यू दिया है. n photons are incident, ये wavelength दिया. Strike the mirror simultaneously at normal incidence such that the mirror gets displaced by 1 micrometer. तो वैल्यू ऑफ n पूछा गया, राइट. सो इसमें मिरर क्यों डिस्प्लेस होगा? बिकॉज लाइट के कारण मोमेंटम एक्वायर करेगा मिरर. तो लाइट जो इंसिडेंट है वो एक फोटोन का मोमेंटम कितना होगा h by lambda, वापस उतना रिफ्लेक्ट होगा. सो ईच फोटोन will give a momentum of 2h by lambda and I have n photons. So this was the momentum acquired by the mirror. तो kinetic energy कितना हो जाएगा मिरर का? p square by 2m. So ये momentum square by 2m. This is the kinetic energy which will get converted to potential energy of the spring. So half k x square. Let me use capital X because small x उन्होंने already यहाँ पर variable use कर लिया है. बस फिर इसको calculation करना है. So let me write k as m omega square because I know angular frequency is root k by m. तो यहीं पे लिख लेता हूँ मैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, तो ये जो m है यहाँ पे ले लेता हूँ बिकॉज फिर वो सब कुछ स्क्वायर हो जाएगा. देखो, ऑलराइट, एंड 2 कैंसिल कर लेता हूँ. नाउ आई कैन जस्ट टेक स्क्वायर रूट राइट अवे. सो आई हैव 2h बाय लैम्डा n शुड बी इक्वल टू m ओमेगा x. कुछ नहीं यार, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है मेरे पास. ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है. सो 2h बाय लैम्डा दिया हुआ 8 पाई इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू n शुड बी इक्वल टू m इंटू ओमेगा. कितना दिया ये ओमेगा देखो यहाँ पर. सो वो कितना दिया हुआ है 10 raised to 24 इंटू h डिवाइड बाय 4 पाई m इंटू x. x इज 10 raised to -6 मीटर्स कंप्रेशन. ठीक है, ओके, तो बस अभी कैलकुलेशन करना है. m कैंसिल हो गया, h कैंसिल हो गया, 4 पाई ये 2 कैंसिल हो गया. देखो यार कितना आ रहा है, n का वैल्यू कितना आ गया 10 raised to 12 आ गया. आंसर क्या क्या पूछा गया? ओह, तो आंसर इज 1. देख लो. एक और क्वेश्चन 2019 से करते हैं. सपोज आर ए न्यूक्लियस एट रेस्ट 226 एटॉमिक मास नंबर है. इन ग्राउंड स्टेट अंडरगोस एन अल्फा डीके. ठीक है, इन एक्साइटेड स्टेट. सो ये आर एन न्यूक्लियस जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड अल्फा पार्टिकल इज फाउंड टू बी 4.44 मेगावोल्ट्स. Rn nucleus then goes to its ground state by gamma decay. The energy of the gamma photon is how much? Okay. So सबसे पहले तो let me write down the reaction. I have Ra226 goes to Rn excited, वो asterisk से denote कर रहा हूँ. ठीक है, plus some alpha particle. Now मुझे पता है कि ये जो Rn excited है और alpha है दोनों का momentum same ही होगा. Why? Because total momentum has to be conserved because the initial Ra nucleus was at rest. So अगर momentum same है तो आई कैन से दैट जो Q वैल्यू है यहाँ पे, जो Q वैल्यू होगा that will be distributed in inverse ratio of mass. Why? Because Q value is the total sum of the kinetic energies of alpha and Rn, and kinetic energy is p square by 2m. Correct. So I know p तो दोनों के लिए सेम है, इन दोनों के लिए. So of course mass के inverse proportional k होगा. So Q value जो है that will be distributed in inverse ratio of the masses.
सो कैन आई राइट 4.44 जो मेगा ई वोल्ट है अल्फा का काइनेटिक एनर्जी, वो क्यू वैल्यू का इनवर्स रेशियो में, मास के इनवर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो दिस विल बी क्यू इंटू 222/226. सो दिस इज स्टैंडर्ड अल्फा डी के थियरी. ओके, यहाँ से देखो 222 ये हो जाएगा 0.02, 226 इंटू 0.02 वुड बी 4.52 मेगा ई वोल्ट. सो ये मेरा क्यू वैल्यू आ गया. ओके, सो नाउ आई कैन राइट माई क्यू वैल्यू एज the mass of Ra minus the mass of the products, which is this, into C square, right? And mass of जो mc square excited nucleus का है, उसमें can I write it in terms of the ground state nucleus? I can write this is equal to mc square excited nucleus का energy should be equal to ground state का energy plus some वो डी एक्साइटेशन जो एनर्जी है डेल्टा ई. दैट डेल्टा ई इज नथिंग बट द एनर्जी ऑफ द फोटोन जो निकलेगा. जो फोटोन निकलेगा एक्साइटेड स्टेट्स, एक्साइटेड वाले न्यूक्लियस से, उसका एनर्जी डेल्टा ई होगा. ठीक है, वही मेरे को डेल्टा ई निकालना है. ऑलराइट, सो क्यू वैल्यू इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ 4.52 इज इक्वल टू मास ऑफ आर ए विच इज कितना दिया हुआ है 226.005. ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट से ये माइनस अब मास ऑफ आर एन इंटू सी स्क्वायर. ठीक है, तो उसमें मैं ये डेल्टा ई को मैं एक्स्ट्रा बाहर लिख लेता हूं, तो बचेगा मास ऑफ आर ए विच इज 222 दिया हुआ है, प्लस मास ऑफ अल्फा 4 दिया हुआ है इंटू सी स्क्वायर, प्लस माइनस एक डेल्टा ई हो जाएगा. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. मैंने यहाँ पर आर एन को एम आर एन इंटू सी स्क्वायर को ये सब्स्टिट्यूट कर दिया और आर एन का वैल्यू 222 लिख दिया. ऑलराइट, तो क्या चाहिए मुझे, बस कैलकुलेशन करना है. सो ये पूरा चीज़ तो 0.005 एटॉमिक मास यूनिट्स हो जाएगा. सो एटॉमिक मास यूनिट्स को मैं 931/c स्क्वायर लिख सकता हूँ. तो ये बन जाएगा 4.52 इज 0.005 इंटू 931. ठीक है, माइनस डेल्टा ई. ओके, हो गया यार, बस कैलकुलेशन करना है. सो डेल्टा ई वुड बी 0.005 इंटू 931 मतलब 4.655 माइनस 4.52.135 मेगा ई वोल्ट्स. तो माय आंसर वुड बी 135. कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ. किलो ई वोल्ट्स में पूछा मैं ना, राइट, देख लो. नाउ 2020 का क्वेश्चन, पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद पोटेंशियल एनर्जी V equal to FR दिया हुआ है. Okay, F is a positive constant, R is a distance from the origin. Its energies are calculated using Bohr's model. If the radius of the orbit is denoted by R, speed, energy, V and E, then for the nth orbit, radius, ये सब Bohr's atomic model वाली theory, n के कौन से पावर के proportional वगैरह होगा, energy कितना होगा. ठीक है, so सबसे पहले तो potential energy FR दिया हुआ है. So can you see कि the force minus dV by dr होता है ना, तो minus F. The minus only denotes that the force is attractive. The magnitude is F. So can I write F is equal to mv स्क्वायर बाय आर. ठीक है, तो मुझे एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो लेट मी राइट एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एफ आर. अब mv स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आर. ठीक है, तो ये मेरा हो गया 3fr/2. ऑलराइट, आई नो एंगुलर मोमेंटम इज nh/2π, तो mvr इज इक्वल टू nh/2π लिख लेता हूँ. बस अभी कुछ नहीं यार, लेट मी जस्ट स्क्वायर एवरीथिंग हियर सो दैट मेरे पास v स्क्वायर आ जाएगा ना. v स्क्वायर आएगा तो मैं इजीली आई कैन एलिमिनेट इट. सो आई हैव m स्क्वायर, v स्क्वायर, यहाँ पे v स्क्वायर को मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करता हूँ fr/m फ्रॉम दिस इक्वेशन इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4π स्क्वायर. तो मेरे पास डायरेक्टली आई कैन यू सी दैट r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर इस इक्वेशन से. ऑलराइट, सो r प्रोपोर्शनल टू n रेज़ टू 2/3 एंड इस इक्वेशन से तो मुझे पता है v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r, सो v विल बी प्रोपोर्शनल टू n रेज़ टू 1/3. तो उसमें से एक ऑप्शन तो हो गया मेरे पास, ऑप्शन बी. अच्छा, बाकी क्या चाहिए मुझे, एनर्जी चाहिए. हो गया यार, बिकॉज मेरे पास यहाँ से r का वैल्यू आ गया ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. सो देखो एनर्जी वुड बी इक्वल टू 3f/2 इंटू आर. एंड व्हाट इज r फ्रॉम दिस इक्वेशन, यहाँ पर एक m कैंसिल हो जाएगा. चल हैव n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4π स्क्वायर इंटू f, एक नीचे चला जाएगा f और एक m भी नीचे चला जाएगा, होल रेज़ टू 1/3. ठीक है, सही किया क्या मैंने,
और एक हाँ करेक्ट किया। इस f को मैं अगर अंदर ले लूँ तो वो एफ स्क्वायर बन जाएगा, अंदर एफ क्यूब बन जाएगा अंदर, और वो एक f इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर एफ स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर देखो सी, देख लो। Another question from 2020, a little controversial question. देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार. In an X-ray tube, electrons emitted from a filament carrying current I hit a target at a distance d from the cathode. The target is kept at a potential V higher than the cathode, resulting in continuous emission of continuous and characteristic X-rays. ठीक है. अब फिलामेंट करंट को डिक्रीज कर दिया I/2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दिया टू 2V. सेपरेशन डिस्टेंस को भी चेंज कर दिया d/2. द कट ऑफ वेवलेंथ इज, अच्छा कुछ कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ पर मेरे पास एक्सरे ट्यूब है, तो ये जो करंट है यहाँ पे, जो फिलामेंट करंट है, उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड. ठीक है, जितना फिलामेंट करंट ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा थर्मियोनिक एमिशन से. एंड दिस इज माय मेटल टारगेट. तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V को 2V कर दिया, और ये करंट I को I/2 कर दिया, और डिस्टेंस को, दोनों के बीच का डिस्टेंस को भी कम कर दिया. बट दैट एक्चुअली विल नॉट हैव एनी कंट्रीब्यूशन, बिकॉज देखो ऑप्शन ए में क्या बोला हुआ है, कट ऑफ वेवलेंथ विल रेड्यूस टू हाफ. सो कट ऑफ वेवलेंथ को क्या होने वाला है, आई नो कट ऑफ वेवलेंथ इज hc/ev, तो v को डबल कर दिया तो कट ऑफ वेवलेंथ विल रेड्यूस टू हाफ. सो दैट इज करेक्ट. वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज रिमेन सेम. कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज तो आर अ प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल टारगेट है ना, उसमें एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह का कुछ लेना देना नहीं है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, पार्शियल मार्किंग था तो इतना तो मार्क्स अपने पास आ गया. ऑप्शन बी, कट ऑफ वेवलेंथ एज वेल एज वेवलेंथ विल रिमेन सेम, ये तो गलत ही है. अगर मैं ऑप्शन डी देखो, कट ऑफ वेवलेंथ विल बिकम 2 टाइम्स लार्जर, वो भी गलत है. ठीक है, तो अपने के पास बचा ऑप्शन सी. ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था. कट ऑफ वेवलेंथ विल रेड्यूस टू हाफ, दैट्स फाइन. इंटेंसिटीज ऑफ ऑल द एक्सरेज विल डिक्रीज. सो जेई ने जो आंसर की दिया उसमें सी ऑप्शन भी करेक्ट दिया था, ए एंड सी दोनों करेक्ट दिया था, बिकॉज देयर लॉजिक वाज दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will decrease because the current is decreasing, and therefore the number of X-ray photons emitted will also decrease, so intensity will decrease. However, यहाँ पे थोड़ा सा controversy है because potential difference भी बढ़ा दिया है, तो potential difference बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी बढ़ जाएगा. So the combined effect of the lesser number of electrons due to I/2 but the more energy of electrons due to 2V, we can't say, honestly we cannot say कि X-rays का intensity कम होगा कि बढ़ेगा, बिकॉज वो कंबाइंड इफेक्ट है ना. तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था. आंसर की में ए एंड सी दिया हुआ है. ऑनेस्टली अगर मैं ये अटेम्प्ट करता एग्जाम में तो आई वुड ओनली हैव टिक्ड आंसर ए एंड गॉन ऑन, तो मतलब पार्शियल मार्क तो मिल गया. मुझे पता नहीं जेई का क्या लॉजिक रहेगा सोचने में कि सी करेक्ट देगा कि नहीं करेक्ट देगा. ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 2021 का क्वेश्चन है, हैवी न्यूक्लियस क्यू ऑफ हाफ लाइफ 20 मिनट्स अंडरगोस अल्फा डीके विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 60%, बीटा डीके विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 40%. Okay, initial number of Q nuclei is 1000. Number of alpha decays of Q in the first 1 hour is how much? Alright, so half life 20 minutes दिया, तो सबसे पहले कितना 1000 है, तो 20 मिनट्स में कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा Q का वैल्यू. अनदर 20 मिनट्स 250, अनदर 20 मिनट्स 125. हाफ लाइफ 20 मिनट्स दिया ना. ओके, सो दिस इज टोटल 1 आवर. तो 1 आवर में कितने डीके करेंगे, 875 विल डीके. ठीक है, उसमें से कितना अल्फा पूछा, तो अल्फा इज 60%, तो 875 इंटू 0.6 विल बी द नंबर ऑफ अल्फा. तो वो कितना हो जाएगा, 6 5 30, 03 42 5, सो 525.0, मतलब 525. सो आंसर वुड बी डी. देखो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. 2021 का दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम. तो ऑप्शन ए क्या बोला हुआ है, रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज इज 9/5. ओके, तो बाल्मर सीरीज मतलब फाइनल स्टेट क्या है, n इक्वल टू 2. तो लॉन्गेस्ट के लिए मतलब शॉर्टेस्ट एनर्जी फोटोन मतलब 3 से 2, सो हो जाएगा r इंटू 1/2 स्क्वायर्ड माइनस 1/3 स्क्वायर्ड. ठीक है, सो दिस विल बी 5r/36. एंड स्मॉलेस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट एनर्जी फोटोन मतलब इंफिनिटी से जो आएगा, दैट विल बी 1/n स्क्वायर, मतलब 1/2 स्क्वायर माइनस 1/infinity. ठीक है, तो ये बन जाएगा r/4. सो इसका रेशियो यू शुड बी एबल टू सी वुड बी 36/5 into 1/4, तो 9/5. Alright, so answer A is correct. Okay, option B में क्या बोल रहा है, there is some overlap between the wavelength ranges of Balmer and Paschen series. तो अगर मैं quickly energy levels लिख लूँ हाइड्रोजन एटम के, so I'll have n equal to 1 is minus 13.6 electron volt,
n equal to 2 is minus 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 4 कर दिया, डिवाइड बाय 9 करूँगा 13.6 को, तो मेरे पास आ जाएगा n equal to 3 विच इज अराउंड 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव, ठीक है, और ये इन्फिनिटी। ओके सो क्या बोला मैं, बाल्मर सीरीज। अच्छा अगर मैं देखूँ कि बाल्मर का जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, और रादर सॉरी लेट मी टॉक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन। सो शॉर्टेस्ट एनर्जी फोटॉन, जो स्मॉलेस्ट एनर्जी फोटॉन वो कितना है, 1.5 से 3.4, करेक्ट। तो दिस इज बाल्मर एंड 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द स्मॉलेस्ट फोटॉन एनर्जी, उससे ज्यादा ही हो गए सारे बाल्मर के फोटॉन्स। अच्छा पैशन का लार्जेस्ट फोटॉन क्या, लार्जेस्ट हाईएस्ट एनर्जी फोटॉन ऑफ पैशन विल कम फ्रॉम इन्फिनिटी, तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So can you see that 1.5 is less than 1.9? इसका मतलब पैशन का मैक्सिमम एनर्जी फोटॉन 1.5 है, whereas बाल्मर का तो फोटॉन सारे 1.9 से इक्वल टू या ज्यादा ही होंगे, तो ओवरलैप तो होएगा ही नहीं। सो आंसर इज बी इज इनकरेक्ट, ठीक है। ऑप्शन सी, वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज आर गिवन बाय 1 + 1 by m square lambda naught, where lambda naught is the shortest wavelength of Lyman series and m is integer, okay। तो लाइमन मतलब n equal to 1 और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या लाइमन के लिए, तो r इंटू 1 by 1 square minus 1 by infinity से जो आएगा, ठीक है। सो कैन आई राइट इन जनरल 1 by lambda वुड बी 1 by 1 minus 1 by n square, ठीक है। सो lambda देखो कितना हो जाएगा, lambda दैट विल बी n square डिवाइड बाय n square minus 1 डिवाइड बाय r विच इज lambda नॉट, ये lambda नॉट है मेरा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, ऑलराइट। फिर ऑप्शन डी, वेवलेंथ रेंजेस ऑफ द लाइमन एंड द बाल्मर सीरीज डू नॉट ओवरलैप, वही सेम लॉजिक यूज करेंगे जैसे ऑप्शन बी में यूज किया। लेट्स क्विकली चेक। तो यहीं पे लाइमन का जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शॉर्टेस्ट एनर्जी सॉरी स्मॉलेस्ट एनर्जी फोटोन जो होगा लाइमन सीरीज में वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और बाल्मर का हाईएस्ट एनर्जी कितना होगा इन्फिनिटी से जाएगा वो 3.4। सो ऑब्वियसली वंस अगेन दे विल नॉट ओवरलैप, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑलराइट। देख लो, लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन। heavy nucleus n at rest undergoes fission, p plus q are the products, ठीक है। delta is mass of n minus mass of p minus mass of q, where mp mq mn are the masses of p q and n respectively। so delta यहाँ पर is nothing but the loss in mass, ठीक है। ep eq are the kinetic energy of p and q, speed of p and q और vp vq, okay okay। क्या पूछा हुआ ऑप्शन ए में, ep plus eq is equal to delta c square। तो ये तो अपन ओरली बोल सकते हैं, दैट इज करेक्ट, बिकॉज डेल्टा इज नथिंग बट द लॉस इन मास। तो कितना एम सी स्क्वायर वाला लॉस कितना हो गया, डेल्टा सी स्क्वायर, पर वो किस में चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स में चला जाएगा, रिएक्टेंट का तो कुछ है नहीं काइनेटिक एनर्जी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। फिर क्या पूछा हुआ है, ऑप्शन बी में एनर्जी ऑफ पी पूछा हुआ है ना। आई नो कि पी एंड क्यू दोनों का जो मोमेंटम है वो सेम रहेगा, दोनों का मोमेंटम सेम रहेगा मैग्नीट्यूड में, बिकॉज टोटल मोमेंटम 0 होना चाहिए, n इज एट रेस्ट इनिशियली, ठीक है। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाय 2m इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सो जो q वैल्यू है डेल्टा c स्क्वायर इज अ q वैल्यू दैट विल डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास इन द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ p and q। सो आई कैन राइट ep as mass of q divided by mass of p plus mass of q into the q value which is delta c square। so option b is incorrect। अच्छा ऑप्शन सी ओरली फिर से करेक्ट, बिकॉज ऑप्शन सी बस इतना ही बोल रहा है, एम पी वी पी इज इक्वल टू एम क्यू वी क्यू, पता ही है ना मोमेंटम सेम है, वी नो दैट फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। फिर ऑप्शन डी में मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ पी एस वेल एस क्यू, तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, तो सिंपल है, डेल्टा सी स्क्वायर इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स शुड बी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय एम पी प्लस पी स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ एम क्यू, ठीक है। तो यहाँ से पी स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 2 एम क्यू डिवाइड बाय एम पी प्लस एम क्यू इंटू डेल्टा सी स्क्वायर। तो ये तो मेरा रेड्यूस मास हो गया ना पूरा, तो रहेगा 2 म्यू डेल्टा सी स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। Let's look at another question. In a photo emission experiment, the maximum kinetic energies of photoelectrons from metal P, Q and R are EP, EQ, ER. They are related by this. EP is 2, EQ is 2, ER. ठीक है. The same source of monochromatic light is used for metals P and Q, while a different source of monochromatic light is used for metal R. Work function दिया हुआ है PQR का 4 electron volt, 4.5, 5.5. Energy of the incident photon used for metal R is what? Okay. तो सबसे पहले what I would like to do is write the equation for पहले metal R के लिए लिखता हूँ. So let's say उसका frequency कुछ nu dash है. So h nu dash is the energy of the photon on metal R.
minus the work function 5.5 should be equal to energy of the electron that is coming from metal R. ठीक है, फिर let me write the same for Q. इसमें h nu बोलता हूँ, माइनस वर्क फंक्शन कितना है 4.5 है, शुड बी EQ. अभी EQ और ER सेम दिया हुआ ना यहाँ पर, ठीक है. सो लेट मी राइट इट एज ER अगेन एंड h nu फॉर मेटल P, h nu माइनस वर्क फंक्शन इज 4 शुड बी इक्वल टू EP विच इज 2ER. सब कुछ ER के टर्म्स में लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे वो थोड़ा एलिमिनेट कर पाऊंगा मैं. ऑलराइट, अभी मेरे बेसिकली इनमें से आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट h nu डैश, ये मेरा जरूरत, ये मुझे चाहिए. तो कैन यू सी कि आई कैन ऐड दिस एंड सब्ट्रैक्ट दिस टू एलिमिनेट ER. ठीक है, यहाँ पे ER प्लस ER 2ER, फिर माइनस करूँगा 2ER, ये हो जाएगा, और यहाँ पे h nu कट जाएगा. तो देखो बचेगा क्या, h nu डैश माइनस 5.5 प्लस माइनस 4.5 माइनस ऑफ माइनस 4 शुड बी 0. ठीक है, तो यहाँ पे h nu डैश कितना आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया. दैट्स योर आंसर. देख लो. Now a question from 2022. The minimum kinetic energy needed by an alpha particle to cause a nuclear reaction. This nuclear reaction is n. ठीक है. Assume that the nitrogen is at rest initially. Masses दिया हुआ है, सबका मास दिया हुआ है. ठीक है. तो वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए. मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, इसका मतलब दिस रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. सो जो काइनेटिक एनर्जी अपन प्रोवाइड करेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, दैट विल गो इन द गेन इन द mc स्क्वायर वाला एनर्जी. राइट, अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन वाज इन पाथफाइंडर बुक. एकदम स्ट्रेट सेम था, बस थोड़े से वैल्यूज अलग थे. तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट. तो जब अल्फा एंड नाइट्रोजन का रिएक्शन हो रहा है, वी नो द मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर. तो म्यू कितना हो जाएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू मास ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर. अभी अल्फा इज द ओनली वन दैट इज मूविंग, नाइट्रोजन तो रेस्ट में, तो अल्फा का ही वेलोसिटी आ जाएगा. तो यहाँ पे कैन यू सी हाफ m अल्फा v स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा. करेक्ट. सो लेट मी राइट इट एज मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है 16. ये कैलकुलेशंस में यू कैन यूज द अप्रोक्सीमेट मासेस ऑफ 16 एंड 4. ठीक है, नीचे 4 प्लस 16 इंटू हाफ m अल्फा v स्क्वायर विच इज द काइनेटिक एनर्जी दैट आई वांट. इसको मैं E बोलता हूँ. ऑलराइट, तो ये मेरा बन गया 4E/5. नाउ दिस शुड बी इक्वल टू द गेन इन mc स्क्वायर. करेक्ट. तो गेन इन mc स्क्वायर कितना है, ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है 19.003 प्लस 1.008 फॉर द हाइड्रोजन माइनस 16.006 प्लस 4.003. ठीक है, ये मेरा सब एटॉमिक मास यूनिट्स में है. सो इनटू में करूंगा 930, यहाँ पे 930 दिया यहाँ पे. ऑलराइट, तो ये मेरा MEV में आ जाएगा पूरा. ओके, सो फटाफट कर लेते हैं. 19.003 माइनस 4.003 इज 15. 15 प्लस 1.008 16.008 माइनस 16.006 इज 0.002 इंटू 930. ठीक है, तो और एनर्जी हो जाएगा इंटू 5/4. तो यहीं पे मैं लिख लेता हूँ. ठीक है, ये 4/5 का RHS पे ले लिया. ऑलराइट, तो ये तो सिंपल है. 0.002 इंटू 5 इज 0.01, तो वो 9.3 डिवाइड बाय 4 बन जाएगा. तो दैट विल बी 2.325 मेगा वोल्ट. राउंड ऑफ कर देना 2.32 तक. देख लो. Another question about 2022. In a radioactive decay chain reaction, thorium nucleus decays into polonium nucleus. The ratio of the number of alpha to the number of beta particles emitted in this process is what? ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल में मुझे पता है हर अल्फा में 4 से डिक्रीज होता है मास नंबर. सो 230 से 214 जा रहा है, मतलब 16 से डिक्रीज हो रहा है, मतलब डिवाइड बाय 4, तो 4 अल्फा पार्टिकल्स तो हो गए. ओके, एंड अल्फा में 2 से बढ़ता है एटॉमिक नंबर. सो 90 से 2 से कम होता है एटॉमिक नंबर. सो 90 से जाना चाहिए 82, बट अपने को 84 चाहिए, तो +2 करेंगे फॉर 2 बीटा पार्टिकल्स, तो जाके 84 तक जाएगा, बिकॉज बीटा में 1 से बढ़ता है एटॉमिक नंबर. सो 2 बीटा, सो माय रेशियो वुड बी 2. सिंपल क्वेश्चन. देख लो. Another question from 2022. When light of a given wavelength is incident on a metallic surface, the minimum potential needed to stop the emitted photoelectrons is 6 volt. Stopping potential. This stopping potential drops to 0.6 if another source wavelength 4 times is used and intensity half of the first one. Okay, what are the wavelength of the first source and work function of the metal? ठीक है,
तो यहाँ पे तो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड रियलाइज इज दैट इंटेंसिटी से कुछ लेना देना नहीं है किसका, stopping potential का. Stopping potential will only depend on the energy of the photon, so that is determined by the wavelength. So let's write the equation. I know stopping potential can be written as h nu by e minus phi by e. ठीक है, ये अपना standard theory से है. So phi is the work function. तो stopping potential initially कितना है 6 volt. So 6 is equal to h nu by e minus phi by e. अब second situation में 0.6 है stopping potential. एंड जो एनर्जी ऑफ द फोटोन है, सी वेवलेंथ 4 टाइम्स कर दिया मतलब एनर्जी 1/4 कर दिया, सो एच न्यू बाई 4e माइनस 5 बाई ई. ऑलराइट, अभी जस्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स एच न्यू एंड 5 एंड टू इक्वेशंस. सो लेट मी जस्ट मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 4 एंड सब्ट्रैक्ट. सो आई हैव 6 minus 2.4 RHS LHS पे, तो बचेगा 3 phi बाई ई. ठीक है, तो phi बन जाएगा 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन बी और डी तो कट गए. अब ऑप्शन ए और डी, बी और सी कैंसिल हो गए, तो ऑप्शन ए और डी से सेलेक्ट करना है. वेवलेंथ कैलकुलेट करना मुझे अभी. तो इसी इक्वेशन में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ, 6 इज इक्वल टू एच न्यू बाई ई माइनस 5 बाई ई, सो 1.2. बस अभी एच न्यू का वैल्यू निकालना है मुझे. एक्चुअली लेट मी राइट वेवलेंथ चाहिए ना, लेट मी राइट न्यू एज सी बाय लैम्डा. ठीक है, सो 6 प्लस 1.2 7.2 शुड बी इक्वल टू, उन्होंने दिया हुआ एच सी बाई 1.24 इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइड बाय लैम्डा. ठीक है, तो लैम्डा आ जाएगा 1.24 डिवाइड बाय 7.2 इंटू 10 पावर माइनस 6. तो उन्होंने 10 पावर माइनस 7 के टर्म्स में दिया, तो लेट मी राइट इट एज 12.4 इंटू 10 पावर माइनस 7. यहाँ पे 12.4 कर दिया इसको. तो ये तो दिख रहा है ना, दिस विल बी 12.4 बाय 7.2 विल बी 1 पॉइंट समथिंग. पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ऑप्शन ए देख लो. And that's it for today. I'll see you at the top. Good night.